ناظرین السلام علیکم۔ روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرم ایمان کی بات ہے اور ایمان بہشت میں پہنچاتا ہے، اور بے شرمی بدخوئی کی بات ہے اور بدخوئی جہنم میں پہنچاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی مسلمان کو کہہ دے کہ او کافر تو ایسا گناہ ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم شرح۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام یونیورسٹی ہوئے کووڈ سے متاثر، حیدرآباد میں زیر علاج، ان سے ملاقات کرنے والوں کو بھی آئسولیشن میں رہنے کی اپیل۔ متحدہ ضلع ایمرجنسی کی حیثیت سے بلا مقابلہ محترمہ کے کویتا کی کامیابی درج کرنے پر ٹیآرایس قائد کی جانب سے 40 فٹ اونچا فلیکس کو گونڈا پوچھر ریزروائر پر پیراگلائڈنگ کے ذریعے لگواتے ہوئے کیا اپنی خوشی کا اظہار۔ جان کمپیٹ واقعے کے بعد شیخ نعمان پر بھینسہ فسادات میں شامل ہونے کا فرضی مقدمہ درج۔ وہ ان کے والد جو 30 سال سے محکمہ پولیس میں خدمات انجام دے رہے، ان کو نوکری سے کیا گیا معطل۔ محکمہ پولیس کی زیادتیوں کے خلاف جمعیت علماء ضلع صدر حافظ علی خان کی تلنگانہ اسٹیٹ ہیومن رائٹس کونسل سے نمائندگی۔ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کے ہاتھوں پالکونڈا میں 8.5 کروڑ کی لاگت سے ترقیاتی کاموں کا آغاز۔ ایم ایس او نظام آباد ذمہ دار ایڈوکیٹ ذیشان رضوی ایم ایس او نیشنل جنرل سیکریٹری منتخب، شہر و ریاست کے مختلف حصوں سے مبارکبادی کا سلسلہ جاری۔ بالآخر سیکریٹریٹ کی مساجد کا رکھا گیا سنگ بنیاد۔ وہ مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ نے ادا کی نماز، لیکن تقریب میں ریاستی وزیر اعلیٰ و دیگر وزراء غیر حاضر۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ قوم کی ہمدردی پڑی بھاری، بھینسہ شہر کے شیخ نعمان کو فرضی مقدمات کا بنایا گیا حصہ، وہ بھیجا گیا جیل۔ ان کے والد کو بھی دی جا رہی سزا، جو خود محکمہ پولیس میں 30 سال سے ملک کی کر رہے تھے خدمات۔ محکمہ پولیس و حکومت کی زیادتیوں کے خلاف ضلع صدر جمعیت علماء حافظ علی خان کی تلنگانہ اسٹیٹ ہیومن رائٹس کونسل سے نمائندگی و کارروائی کا کیا مطالبہ۔ آج بتاریخ 25 نومبر جمعیت علماء نظام آباد انسانی حقوق کمیشن حیدرآباد سے رجوع کچھ دن قبل جان کمپیٹ میں پیش آئے واقعہ، جس میں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ مسلم لڑکی کو دیکھ کر چند مسلم نوجوان مشتعل ہو گئے تھے۔ لڑکا اور لڑکی سے پوچھ تاچھ کرنے پر 6 نوجوان لڑکوں پر سنگین مقدمات لگائے گئے اور 2 مہینے زائد جیل میں رہنے پر عدلیہ کی جانب سے جب ان کی ضمانت ہوئی، بھینسہ پولیس کی جانب سے شیخ نعمان A1 کو دوبارہ بھینسہ پولیس کی جانب سے بھینسہ فساد کے جھوٹے مقدمے میں جیل بھیج دیا گیا۔ نعمان کے والد شیخ محمود ہوم گارڈ جو 30 سال سے اپنی خدمات بحسن و خوبی انجام دے رہے تھے، انہیں محض نعمان کے والد ہونے کی وجہ سے معطل کر دیا گیا۔ اس ضمن میں جمعیت علماء ضلع نظام آباد کے صدر حافظ علی خان متاثرین کے افراد خاندان کے ہمراہ ریاستی انسانی حقوق کمیشن کو تحریری یادداشت پیش کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ 6 نوجوانوں پر جو سنگین دفعات لگائے گئے وہ ہٹائے جائے اور نعمان کے والد شیخ محمود کی ملازمت بحال کیا جائے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 ستمبر 2021 کو ایڑپلی پولیس لمٹ میں جانکم پیٹ کے پاس ایک واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بعد 11 تاریخ کو 6 لوگوں کے اوپر مقدمہ درج ہوا اور 6 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے ایک شیخ نعمان ہیں اور دوسرے محمد محسن ہیں، عبد النعمان ہیں اور شعیب علی ہے، محمد عبد الیاس ہے، سید ننو علی۔ یہ 6 افراد کے اوپر مقدمہ درج ہوا، جس میں وہ واقعہ جو ہوا تھا اس کے واقعے سے زیادہ ان کے اوپر سنگین دفعات لگائے گئے اور 8-10 دفعات لگائے گئے تھے، اور کچھ کم
70 दिन 2 महीने 10 दिन के करीब हो जाने के बाद उनकी ज़मानत हुई। ज़मानत के बाद जो A1 लड़का है उसको A1 जो लड़का है शेख नोमान, उनको फिर से भैंसा फसादात के केस में डालकर उनको फिर से जेल रवाना कर दिया गया है। और उनके वालिद मोहतरम वो पुलिस डिपार्टमेंट में 30 साल से मुलाजिमत कर रहे हैं और उनको बेटे की गलती की सज़ा बाप को देना ये कहाँ का इंसाफ है। उनके वालिद मोहतरम को सस्पेंड कर दिया गया है, जिस पर आज हम हज़रत मौलाना जाफ़र पाशा साहब हुस्सामुद्दीन साहब के ज़रिए से आज हम ह्यूमन राइट्स कमीशन को रुजू हुए हैं और यहाँ पर उनको दरख्वास्त दिए हैं कि ये अफराद ख़ानदान के साथ इंसाफ हो और इंसानी हुकूक़ की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो इनके भाइयों को, इनके ख़ानदान वालों को परेशान नहीं किया जा सकता। जिस पर ह्यूमन राइट्स कमीशन के ज़िम्मेदारों ने हमको इस बात का तयक़ुन दिया कि जो निर्मल डिस्ट्रिक्ट के SP साहब है वो उनसे बात करेंगे और उनके वालिद मोहतरम जो 30 साल से ड्यूटी कर रहे थे, जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, उनको बहाल करने के लिए इंसानी हुकूक़ कमीशन उसके ऊपर पूरी कोशिश करेगा, ये हमको तयक़ुन दिया गया है। साथ ही साथ जिन लड़कों के ऊपर जो जुर्म से ज़्यादा उनके ऊपर दफ़ात लगे हैं, मुस्लिम लड़कियों के ऊपर जो कि स्टूडेंट है और कोई उसमें मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई उसके अंदर बी फार्मेसी पढ़े हुए हैं, अच्छे तालीमी याफ्ता बच्चे हैं, उनके ऊपर जो संगीन दफ़ात लगे हैं वो उसके ऊपर भी गौर करके चार्जशीट के अंदर संगीन दफ़ात निकालने का हमको तयक़ुन दिया, जिस पर हम ह्यूमन राइट्स कमीशन के तमाम ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस दरख्वास्त के ऊपर ये तमाम तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने मुस्लिम अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर रखा संग बुनियाद। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की तामीर नौ के सिलसिले में दोनों मसाजिद का संग बुनियाद रखा गया। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेख अल जामिया निजामिया ने संग बुनियाद की रस्म एक सादा तकरीब में अदा की। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, तेलंगाना असम्बली में मजलिस के फ्लो लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी, मजलिसी अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, अहमद बलाला, TRS के रुकन कौंसिल फारूक हुसैन, GHMC के साबिक डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, मशाइख मौलाना अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी, मुनीरुद्दीन मुख्तार और दीगर ने वहां पर नमाज ज़ोहर अदा की। संग बुनियाद 12:20 पर रखा गया। संग बुनियाद की तकरीब से मीडिया को दूर रखा गया। नए सेक्रेटरी की तामीर के लिए कदीम इमारतों के इंहदाम के वक्त 2 मसाजिद को शहीद और एक मंदिर को मुनद्दिम कर दिया गया था, जिसके खिलाफ मुसलमानों ने आवाज उठाई थी। वज़ीर आला ने मौजूदा मुकामात पर मसाजिद की दोबारा तामीर का ऐलान किया था। दोनों मसाजिद के लिए 1500 गज अराज़ी मुख्तस की गई है और तयशुदा डिजाइन के मुताबिक 2.9 करोड़ रुपए का खर्च इन मसाजिद की तामीर पर आयद होगा। पहले मरहले में 1 करोड़ रुपए से मसाजिद की तामीर का काम किया जाएगा, जबकि दूसरे मरहले में वजू खाना, बैतुल खलाओ और इमाम का कमरा तामीर किया जाएगा। मसाजिद की तामीर अंदरून 1 साल मुकम्मल करने का मंसूबा है, ताकि सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह तक मसाजिद भी इबादत के लिए पूरी तरह तैयार रहे। हुकूमत के एक नामवर आर्किटेक्ट से मस्जिद का प्लान तैयार करवाया है, जो इंतहाई खूबसूरत है। बताया जाता है कि मंदिर और खर्च के तामीरी कामों के लिए अलहदा तारीख तय की जाएगी। कांग्रेस तरक्याती खातून कायदा मलिका बेगम जिले कांग्रेस मोहतमिद के हैसियत से नामजद। जिले सदर कांग्रेस पार्टी मौलाना मोहन रेड्डी ने अहकामात जारी किए। शहर निजामाबाद कांग्रेस की खातून हरकियाती कायद मलिका बेगम, जो गुज़िश्ता कई सालों से कांग्रेस में अपनी बेलौस खिदमत अंजाम दे रही हैं और इनकी कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए रियासती सदर कांग्रेस रेवंत रेड्डी की हिदायत पर इन्हें जिले कांग्रेस मोहतमिद के ओहदे पर फाइज किया गया और आज कांग्रेस भवन में तकरीब का इनेकाद करते हुए PCC वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़, PCC मौलाना मोहन रेड्डी, PCC जनरल सेक्रेटरी गड़गो गंगाधर, कांग्रेस अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान के हाथों इन्हें अहकामनामा हवाले किया गया। इस मौके पर इन्होंने तमाम कांग्रेस के आला कायदीन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रब्बानी व दीगर ने मुबारकबाद पेश की। इस तकरीब में केशव वेणु, डिस्ट्रिक्ट प्रचार कमेटी सदर जावेद खान वो खवातीन कायदा मौजूद थे। MSO शाख निजामाबाद की कारकर्दगी से मुतासिर होकर कौमी सतह पर MSO की नुमाइंदगी के लिए दिया गया मौका। MSO जिम्मेदार एडवोकेट मोहम्मद अब्दुल ज़ीशान रजवी नेशनल जनरल सेक्रेटरी और मोहम्मद शाहिर अहमद नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर की हैसियत से मुंतखब।
मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 51 मोहम्मद अली बागबान की जानिब से दी गई इनको तहनीत की गई इनकी हिम्मत अफजाई। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया जो हिंदुस्तान में गुज़िश्ता कई सालों से सरगर्म है और मुल्क की हर यूनिवर्सिटी में इस तलबा तंजीम की शाख मौजूद है और साथ साथ हिंदुस्तान के 20 से ज़्यादा रियासतों के कई अजला में एमएसओ सरगर्म है और हाल ही में एमएसओ के इंतखाबात मरकजी सतह पर अमल में लाए गए, जिसमें बहैसियत सदर पीएचडी स्कॉलर मोहम्मद मुदस्सिर जो दिल्ली से है मुंतखब हुए। इसी तरह मोतमिद आला की हैसियत से शहर निजामाबाद एमएसओ से एडवोकेट मोहम्मद अब्दुल ज़ीशान रज़वी का इंतखाब अमल में लाया गया। इसी तरह शहर निजामाबाद के हरकियाती एमएसओ रुकन मोहम्मद शहीर अहमद को नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर की हैसियत से मुंतखब किया गया। वाज़ रहे कि एमएसओ निजामाबाद गुज़िश्ता 12 सालों से शहर में मुख्तलिफ फलाही खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वाज़ रहे कि कोविड दौर में एमएसओ की जानिब से कई लावारिस मैयतों की तदफीन व मरीजों को ऑक्सीजन की फ्राहमी व अशियाए ज़रूरिया की तक़सीम, मरीजों को साल भर खून की फ्राहमी व लावारिस बच्चों को तालीम की फ्राहमी जैसे कई फलाही खिदमात किए जा रहे हैं, जिसके सबब एमएसओ निजामाबाद के मेंबरान को कौमी सतह पर एमएसओ की नुमाइंदगी का मौका दिया गया है, जिस पर आज डिवीजन नंबर 51 मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान की जानिब से 9 मुंतखब कमेटी अराकीन का शहर में इस्तकबाल करते हुए तहनीत दी गई और एमएसओ की बेलूस कारकर्दगी पर खुशी का इजहार करते हुए इनकी हिम्मत अफजाई की गई। इस मौके पर डिवीजन के जिम्मेदार मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद सोहेल बागबान, नवाज रजा, शेख इमरान व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसे गुलपोशी का जो मकसद आज का जो मकसद था, जैसा कि ज़ीशान रिज़वी को दिल्ली अब बुलाया गया था, इस मकसद के लिए बुलाया गया था कि एमएसओ की जो खिदमत 15 साल से जो ज़ीशान रिज़वी अंजाम दे रहे हैं निज़ामाबाद तेलंगाना में, इनको कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया दिल्ली बुलाकर इनको मीटिंग अरेंज करे। मीटिंग में इनको एक अहदा पोस्ट दिया गया। वो पोस्ट ये है कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी का अहदा इनको दिया गया। इसी ज़मन में हम लोग आज ज़ीशान रिज़वी की गुलपोशी किए हैं और इन्हीं के साथ साथ हमारे शहीर बाबा, इनको भी नेशनल लेवल पर एग्जीक्यूटिव मेंबर मुंतखब किया गया है। इनके ज़मन में हम आज हमारी तरफ से, हमारे दोस्त और अहबाब की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यूनिट निज़ामाबाद की 15 सालों से निज़ामाबाद में खिदमत जारी व सारी हैं और इसका ज़िम्मा पूरा ज़ीशान रिज़वी को जाता है और उनके बाद हम लोग हैं, हमारे साथी हैं। हम तमाम साथियों की तरफ से ज़ीशान रिज़वी और शहीर अहमद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, इसलिए कि ज़ीशान रिज़वी को दिल्ली बुलाया गया था पिछले संडे और वहाँ पर उनको नेशनल जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से नवाजा गया है और शहीर अहमद साहब को भी उनके खिदमात को, जैसे कि ब्लड डोनेशन वगैरह है, उनकी खिदमात को नज़र में रखते हुए एमएसओ ने नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर का ओहदा दिया है उनको। इन दोनों को ये ओहदे बहुत बहुत मुबारक हो और इसी के साथ साथ इनकी ज़िम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। मैं उनको उनके काम के लिए बहुत मुबारकबाद देता हूं और तमाम एमएसओ यूनिट निज़ामाबाद की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर 8.5 करोड़ रुपए के मसारिफ से ज़ेर तामीर होने वाले मेन रोड व डबल रोड की तामीरी कामों का रियासती वज़ीर इमारत व शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। रियासती वज़ीर इमारत व शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने दौरा करते हुए बालकोंडा मंडल के मुकाम पर 8.5 करोड़ रुपए मालियती रकम से संग बुनियाद रखे गए मेन रोड की चौड़ाई व डिवाइडर, सेंट्रल लाइटिंग और ग्राम पंचायत के डबल लाइन रोड के तामीरी कामों के अलावा 90 लाख रुपए की लागत से शुरू करदा अम्बेडकर बीटी रोड के कामों का जायजा लेते हुए कहा कि साफ और शिफाफ तरीके से जल्द तामीरी कामों को फिलफुल मुकम्मल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारों को हिदायत जारी की। इस मौके पर इनके साथ मंडल व मुकामी कायदीन ने शिरकत की। दरगाह बड़ा पहाड़ ज़ायरीन को सख्त तकालीफ और मुश्किलात का सामना, वक्फ बोर्ड को सालाना 3.5 करोड़ की आमदनी, सहूलियात सिफर के मुमासिल, ज़ायरीन सहूलियात के मुंतज़िर, स्पीकर असम्बली की हिदायत पर टेंडर बर्खास्त, बोर्ड के जरिए खिदमात की अंजाम दही के दौरान कल्लों की चोरी।
दरगाह बड़ा पहाड़ सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के टेंडर 9 और 23 नवंबर को तलब किए गए थे, लेकिन कोई भी टेंडर में ज़ायरीन को तमाम सहूलतें फराहम करते हुए टेंडर तलब करने और वक्फ बोर्ड के अहदेदारों से ख्वाहिश की थी। लेकिन वक्फ से 2 मरतबा टेंडर तलब किए गए थे और स्पीकर असम्बली पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की इत्तला के बाद कोई भी टेंडर्स में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा पहाड़ दरगाह सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह वर्णी मंडल के जलालपुर में वाक़ है। ये पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के हल्के में आती है और पोचराम श्रीनिवास रेड्डी बड़े पहाड़ पर ज़ायरीन को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम करने के लिए ख्वाहिशमंद है। 2 साल कबल भी गुत्तेदारों की मनमानी और ज़ायरीन को हरासा करने पर वक्फ बोर्ड की निगरानी में इंतजामात को अंजाम दिया था। बड़ा पहाड़ दरगाह से वक्फ बोर्ड को सालाना 3.50 करोड़ से जायद आमदनी हासिल हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी सहूलतें नहीं के बराबर है और ज़ायरीन के साथ लूट खसोट का मामला किया जा रहा है। फातिहा ख्वानी चादर के लिए हजारों रुपए का मुतालबा किया जा रहा है और गुत्तेदार का अमला दरगाह के इतराफ इकनाफ रहते हुए ज़ायरीन को परेशान करते हुए पोचराम श्रीनिवास रेड्डी को इस बात का इल्म होने पर इन्होंने ज़ायरीन के साथ हरासा बंद करने की हिदायत देते हुए वक्फ बोर्ड की निगरानी में चलाने की ख्वाहिश की है। जुमेरात और जुम्मा के रोज हजारों अफराद जियारत के लिए न सिर्फ तेलंगाना बल्कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कई अजला से ज़ायरीन आते हैं और हर दिन कम अज कम 200 से जायद बकरे की नियाज की जाती है और वक्फ बोर्ड के अहदेदारों को हर बात का इल्म होने के बावजूद भी अभी तक कोई खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए गए हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर और वक्फ बोर्ड के अमले के मिली भगत से ही ये सारे मामलात को अंजाम देने की शिकायत भी आम है। टेंडर में कोई भी हिस्सा न लेने के बाद गुत्तेदार की मियाद के बाद गुज़िश्ता 1 हफ्ते से दरगाह के इंतजामात वक्फ बोर्ड की निगरानी में अंजाम दिए जा रहे हैं और वक्फ बोर्ड की जानिब से यहाँ पर जो गला है, ये गले का भी 2 दिन पहले सरखा किया गया। इस बारे में वक्फ इंस्पेक्टर अब्दुल साजिद से दरियाफ्त करने पर बताया कि इस खुसूस में वर्नी पुलिस को भी शिकायत कर दी गई है। ACP बोधन ने बताया कि सर्कल इंस्पेक्टर की निगरानी में तहकीकात की जाएगी। वक्फ बोर्ड के अहदेदारों की लापरवाही और बड़ा पहाड़ पर बुनियादी मसाइल को हल करने में वक्फ बोर्ड नाकाम नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ज़ायरीन को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़ायरीन की जानिब से वक्फ बोर्ड से इस बात का मुतालबा किया जा रहा है कि ज़ायरीन को सहूलतें फराहम करते हुए बुनियादी मसाइल को हल करे। असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी कोरोना से मुतासिर मामूली टेस्ट के तहत बरोज़े चारशंबा रात के औकात में कोरोना टेस्ट करने पर पॉजिटिव की तस्दीक होने का इजहार। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इन्हें किसी भी किस्म के अमराज न होने के बावजूद भी सिर्फ डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक हॉस्पिटल में शरीक होने का इजहार किया और बताया कि गुज़िश्ता कुछ यौम से इन्हें मिलने वाले 200 अहबाब कोरोना टेस्ट करवाते हुए चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करके आइसोलेशन में रहने की ताकीद की। फिलहाल असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी हैदराबाद के AIG दवाखाने में ज़ेरे इलाज तिब्बी इमदाद हासिल कर रहे हैं। SBI की जानिब से फ्राहम करदा तरबियत से हर एक फर्द इस्तिफादा हासिल करके खुद रोजगार हासिल करने का जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया इजहार। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने SBI के ज़ेरे निगरानी में RSCTI के तहत खुद रोजगार के लिए तरबियत हासिल करने वाले उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट हवाले किया। और इसी तरह से डिचपली में वाक़े स्टेट बैंक के दए खुद रोजगार तरबियती मराकज़ के TTDC का मुशाहिदा किया। वो बात इन्होंने RSCTI के ज़ेरे निगरानी CCTV में तरबियत मुकम्मल करने वाले ट्रेनर्स को सर्टिफिकेट व टोल किट्स की फ्राहमी अमल में लाते हुए कहा कि हर एक फर्द SBI की जानिब से दी जाने वाली तरबियत से इस्तिफादा हासिल करके खुद रोजगार हासिल करके अपने अरकान खानदान की किफालत करने का इजहार किया। तिब्बी मराकज़ के जरिए कोविड वैक्सीनेशन के अमल को फिलफुर मुकम्मल करने के लिए जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वी पाटिल ने किया इजहार। कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वी पाटिल ने जिले के दफ्तर में महकमे सेहत के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए कहा कि मौज़े में मरहलेवार तरीक़े के तहत वैक्सीनेशन को 100% मुकम्मल करने के लिए अहदेदारों को ताकीद की। इसी तरह से जिले कलेक्टर ने गाँव में मौजूद बच्चों को क़ुव्वत मदाफ़त का टीका देने में तिब्बी मुलाजमीन दिलचस्पी लेने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश धतुरे, जिले के DEO कल्पना कुंटे व अहदेदार ने शिरकत की। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दौरा करते हुए बालकोंडा इलाके के मुख्तलिफ मौज़ूआत में मुनक़िदा शादी तक़ारीब में शिरकत करते हुए नए जोड़े को दी मुबारकबाद।
ریاستی وزیر امارت و شورا مملہ پرشانت ریڈی نے دورہ کرتے ہوئے بالکنڈ حلقے کے MPTC ممبر کنیا لنگاوا کے فرزند کی مبکال دیہات میں واقع مانی گھنٹا فنکشن ہال میں منعقدہ شادی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے نئے جوڑے کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی۔ اسی طرح سے MPTC کے ممبر اور ڈیمو لکشمی دیویندر کی دختر کی شادی تقریب میں شرکت کی۔ وہ نئے شادی شدہ جوڑے کو پرخلوص مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ وزیر کے بھائی ویملا اجے ریڈی، بالکنڈا کے MPP شیوا لنگو سرینیواس، مورتار منڈل پارٹی صدر ایلیا، مورتار منڈل ZPTC بدم روی، مبکال منڈل کے MPP وینکٹ ریڈی، منڈل TRS پارٹی صدر بدم پروین ریڈی، ZPTC داسری وینکٹیش نے شرکت کر کے نئے جوڑے کو پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک توقعات وابستہ کیے۔ بچوں کی صحت کے متعلق والدین احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اپنے ٹریفک ناف کے ماحول کو صاف رکھنے کا ڈاکٹر جے پرکاش نے کیا اظہار۔ کوٹگی منڈل کوڑی چیرلا دیہات میں واقع پرائمری ہائی اسکول میں آزادی کا امرت مہوتسو پروگرام کے تحت طلباء و طالبات کو ہیلتھ چیک اپ منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر جے پرکاش نے کہا کہ صحت کی حفاظت کے لیے ہر ایک فرد اجتماعی ذمہ داری کے تحت اپنے ٹریفک ناف کے ماحول کو صاف ستھرا رکھتے ہوئے صحت مند رہنے کا اظہار کیا، اور اسی طرح سے اس موقع پر ہیلتھ سپروائزر کے کرشنا وانی نے طلباء و طالبات کو یوگا و میڈیٹیشن کے متعلق معلومات فراہم کی۔ اس پروگرام میں ہیلتھ سپروائزر کے کرشنا وینی، فارماسسٹ پروشوتم، پرینکا، ANM ڈی شوبھا، سوپنا، آشا ورکرز و اسکول کے اساتذہ صاحبین نے شرکت کی۔ چیف منسٹر KCR دہلی سے خالی ہاتھ واپس، وزیر اعظم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ دھان کے مسئلے پر مرکز سے کوئی تیقن نہیں۔ دھان کی خریدی، کسانوں کے مسائل اور آبی تنازع کے معاملے میں مرکز سے دو نوک بات چیت کے لیے نئی دہلی کا دورہ کرنے والے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کسی نتیجے کے بغیر 3 دن بعد حیدرآباد واپس ہو گئے۔ KCR نے دھان کی خریدی کا مطالبہ کرتے ہوئے حیدرآباد میں مہا دھرنا منعقد کیا تھا اور ریاست کے مسائل پر مرکز اور BJP سے آر پار کی لڑائی کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ضرورت پڑنے پر نئی دہلی میں جنتر منتر پر دھرنا منعقد کیا جائے گا۔ چیف منسٹر KCR اتوار کی شام بعض ریاستی وزراء اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ نئی دہلی روانہ ہوئے۔ امید کی جا رہی تھی کہ وہ کسانوں کے مسائل اور ریاست کے آبی تنازع کے سلسلے میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ چیف منسٹر کی جانب سے نریندر مودی سے ملاقات کا وقت مانگا گیا، لیکن وزیر اعظم کے دفتر نے مودی کی مصروفیات کا بہانہ بنا دیا۔ چیف منسٹر 3 دن تک نئی دہلی میں قیام پذیر رہے، لیکن انہوں نے کسی ایک مرکزی وزیر سے بھی ملاقات نہیں کی، جبکہ سابق میں وہ وزیر آبی وسائل گجیندر سنگھ شیخاوت اور وزیر غذائیہ پیوش گوئل سے ملاقات کی تھی۔ چیف منسٹر نے KTR کی قیادت میں ریاستی وفد کو مرکزی وزیر پیوش گوئل سے ملاقات کے لیے روانہ کیا، جہاں انہوں نے واضح کر دیا کہ تلنگانہ سے بوائلڈ رائس خریدا نہیں جائے گا۔ اس ملاقات کے بعد چیف منسٹر نے حیدرآباد واپسی کا فیصلہ کیا اور صبح پہر وہ واپس ہو گئے۔ چیف منسٹر نے کسان ایجیٹیشن میں فوت ہونے والے کسانوں کو فی کس 3 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا ہے، لیکن امداد کی تقسیم کے سلسلے میں انہوں نے کسانوں کے نمائندوں سے ملاقات نہیں کی۔ چیف منسٹر KCR دورے پر پارٹی حلقوں میں مایوسی کا انٹر کے امتحانات میں 50% چوائس رہے گا۔ تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی سالانہ امتحانات میں 50% چوائس سوالات دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کورونا وبا کے باعث گزشتہ تعلیمی سال 2020-21 میں بھی 50% چوائس دینے کا بورڈ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا۔ کورونا کی دوسری لہر میں شدت پیدا ہو جانے کی وجہ سے امتحانات کا انعقاد نہیں کیا گیا تھا۔ حال ہی میں سیکنڈ ایئر میں زیر تعلیم طلباء کے لیے فرسٹ ایئر کے سالانہ امتحانات کا انعقاد کیا گیا، جس میں 50% چوائس کے فیصلے پر عمل کیا گیا۔ پرچہ سوالات ABC 3 سیٹس پر مشتمل رہیں گے، جس میں 2 سیٹس 50% نظام پر عمل کیا گیا۔ سیکشن B-C میں 10 سوالات دیے جائیں گے، جس میں 5 سوالات کے جوابات تحریر کرنا ہوگا۔ آئندہ سال اپریل میں منعقد ہونے والے انٹر کے سالانہ امتحانات میں اسی نظام پر عمل کیا جائے گا۔ انٹر کا نصاب 30% گھٹ گیا ہے، 70% نصاب پر عمل آوری ہوگی۔ نصاب کو انٹر بورڈ کی ویب سائٹ پر رکھا گیا ہے۔ MSET بھی انٹر کے 70% نصاب پر مشتمل ہوگا۔ احتجاج کے 1 سال کی تکمیل 26 نومبر کو جمع ہونے کسانوں سے اپیل۔
संयुक्त किसान मोर्चे ने शुमाली हिंद की मुख्तलिफ रियासतों के किसानों से अपील की कि वो 26 नवंबर को एहतिजाज के मुकामात पर जमा हो, जहां एक साल पहले मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतिजाज शुरू किया गया था। संयुक्त मोर्चे का 21 नवंबर को इजलास मुनक़िद हो रहा है, जिसमें मुस्तक़बिल के लाहे-अमल को ख़तियत दी जाएगी। मोर्चे की जानिब से 22 नवंबर को लखनऊ में होने वाली किसान महापंचायत को कामयाब बनाने की भी तमाम किसानों से अपील की गई। तेलंगाना में टीचर्स की 18,000 जायदादें मखलूआ, कैडर पोस्ट की तकसीम का अमल मुकम्मल, 2-3 दिन में रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी। रियासत में टीचर्स की 18,000 जायदादें मखलूआ हैं। इन जायदादों पर तकर्रुरात के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। महकमे तालीम की जानिब से स्कूली तालीम कैडर पोस्ट की तकसीम का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट 2-3 दिन में हुकूमत को पेश कर दी जाएगी। हुकूमत की जानिब से रियासत भर में कैडर पोस्ट को तकसीम करने का काम जारी है। ये अमल आखिरी मराहिल में पहुँच चुका है। ओहदेदारों की जानिब से जिले सतह पर कैडर पोस्ट को तकसीम करने की फहरिस्त तैयार की जा चुकी है। महकमे तालीम के ओहदेदार डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DEO से तफसीलात हासिल कर रहे हैं। कल भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तफसीलात हासिल की गई, जिसके मुताबिक रियासत में टीचर्स की जुमला 1.20 लाख जायदादें हैं। फिलहाल 1.2 लाख टीचर्स खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कैडर की तकसीम में SGTs, स्कूल असिस्टेंट्स, जूनियर असिस्टेंट्स, PETs को जिले सतह के कैडर की हैसियत से निशानदही की गई है। हेड मास्टर्स, MEOs, सीनियर असिस्टेंट्स और सुपरिंटेंडेंट जैसी जायदादों को जोनल मल्टी जोनल्स के हुदूद में लाया जा रहा है। रियासती सतह के दफातर, स्कूल, तालीमी कमिश्नरेट, NCRT में खिदमात अंजाम देने वाला अमला दूसरे ओहदेदारों की जायदादों को रियासती सतह की जायदादों की हैसियत से निशानदही की गई है। गवर्नमेंट स्कूल्स में तुलबा की दाखिलों में इजाफा, लेकिन 3 लाख तुलबा को हनूज निसाबी कुतुब अदम मौसूल। कोविड-19 वबा के बाद गवर्नमेंट स्कूल्स में तुलबा के दाखिलों में काफ़ी इजाफा हुआ है, लेकिन हुकूमत की जानिब से साबिक़ा तुलबा की तादाद के लिहाज से किताबों की तिबा से गवर्नमेंट स्कूल्स में तकरीबन 3 लाख तुलबा को जारिया तालीमी साल के लिए इनके निसाबी कुतुब के उसूल में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस साल रियासत भर में गवर्नमेंट स्कूल्स में तुलबा के दाखिलों में काफ़ी इजाफा हुआ है और ये तादाद 25.5 लाख हो गई है। ताहम हुकूमत ने सिर्फ 1.43 करोड़ निसाबी किताबों की तिबात की है, जो 19 लाख तुलबा की ज़रूरत के लिए काफ़ी होती है। इस मसले के पेश नज़र हुकूमत ने तकरीबन 3 लाख तुलबा के लिए मुस्तमिला किताबों का इंतज़ाम करते हुए इस मसले को हल करने की कोशिश, फिर भी बाकी 3 लाख तुलबा इससे छूट गए। हर गवर्नमेंट स्कूल में औसतन 50 से 80 तुलबा को उन्नूस किताबें हासिल होना बाकी है। माह सितंबर के बाद गवर्नमेंट स्कूल्स में दाखिला हासिल करने वाले नए तुलबा इस बात पर फिक्रमंद है, क्योंकि किताबें न होने की वजह वो दिसंबर में होने वाले ऐसे इम्तिहान के लिए तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। ये कहते हुए कि तकरीबन 3 लाख तुलबा को हुनूस किताबें हासिल होना है। महकमे तालीमात के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा है कि हम मसले का जायजा ले रहे हैं और इस मसले को जल्द हल करने की पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। मुकामी दराजाती MLC के तौर पर बिला मुकाबला मुंतखब होने वाली के कविता के एक चाहने वाले ने साई प्रसाद ने एक अनोखे तरीके से दी पुरखुलूस मुबारकबाद। मुकामी दराजाती MLC के तौर पर बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले कलवकुंटला कविता साहिबा को एक चाहने वाले TRS शायद पब्बा साई प्रसाद ने रिजर्वायर के पास पैराग्लाइडिंग के तहत भारी फ्लेक्सी के जरिए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की, जो कि 40 फीट लंबाई पर मबनी फ्लेक्सी होने पर मुकामी अवाम ने दिलचस्पी के साथ मुशाहिदा किया। नमस्ते अंदरिकी ఈ రోజు నిజామాబాద్ మరియు కామారెడ్డి ఉమ్మడి జిల్లాల అభ్యర్థి అయిన కల్వకుంట్ల కవితక్క గారు MLCగా రెండోసారి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోబడినారు। చాలా సంతోషంగా ఉంది। దీని సందర్భంగా మన తెలంగాణలో ప్రముఖ పర్యాటక ప్రదేశమైన కొండపోచమ్మ సాగర్లో పారాగ్లైడింగ్ అనే ఎక్విప్మెంట్లో దాని కింద ఫ్లెక్స్ని ఏర్పాటు చేసి దానిపైన కంగ్రాచ్యులేషన్స్ కవితక్క అని बैनर कट्टी నేను ఈ విధంగా వినూత్నంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నందుకు సంతోషిస్తున్నాను। ZP चेयरमैन विठल राव की सदारत में जिले सतह के तिब्बू महकमे तालीम से वाबस्ता ओहदेदारों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया।
शहर के सुभाष नगर में वाक़ जिले परिषद दफ्तर में ZP चेयरमैन विठल राव की सदारत में जिले सतह के तिब्बत व तालीम महकमे सेहत से वाबस्ता अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़द किया गया। इस प्रोग्राम में ZP CEO गोविंद, ZPTC मेम्बरान वेलपुर भारती, राकेश चंद्रा, कोटगिर शंकर, इंदलवाई, मुस्माना रेड्डी, जिले के DEO महकमे सेहत व जिले के सार्वजनिक हॉस्पिटल के अहदेदारों ने शिरकत की। डॉक्टर अब्दुल कवी तेलंगाना यूनिवर्सिटी में चीफ वार्डन मुकर्रर। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के चीफ वार्डन की हैसियत से डॉक्टर अब्दुल कवी का तकर्रुर अमल में लाते हुए वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रविंदर गुप्ता ने तकर्रुरनामा हवाले किया। डॉक्टर अब्दुल कवी तेलंगाना यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट VRO है और एग्जामिनेशन शोबे के एडिशनल कंट्रोलर है और ये लंदन और इंग्लैंड में उर्दू अदब व रिसर्च करते हुए PhD की है और असिस्टेंट PRO के अलावा तेलंगाना यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स इंचार्ज यूथ वेलफेयर ऑफिसर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। फर्ज शनास अहदेदार होने की वजह से इन्हें वाइस चांसलर रविंदर गुप्ता ने इन्हें हॉस्टल के चीफ वार्डन की हैसियत से तकर्रुर करने पर इन्होंने वाइस चांसलर रविंदर गुप्ता से इज़हार तशक्कुर किया। अखिलतों के खिलाफ 7 बदतरीन जालिम मोदी व योगी शामिल, माशी और वीजा तहदीदात आयद करने अमेरिका और हल्फियों से अपील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को मुमताज ग्लोबल क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न ने मजहबी अखिलतों पर जुल्म ढाने वाले दुनिया की 7 बदतरीन जालिमों में शुमार किया। इस तंजीम ने अमेरिकी हुकूमत और हलीफ मुल्कों से अपील की कि मोदी हुकूमत के कलीदी फैसले साज अरकान के खिलाफ वीजा और माशी तहदीदात आयद किए जाए ताकि अखिलतों पर जुल्म के खात्मे के लिए दबाव डाला जा सके। इस वायरस में शामिल दीगर आलमी कायदीन चीनी सदर से जनपंग, तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, नाइजीरियानी लीडर नासिर अल रिफाई और शुमाली कोरियाई डिक्टेटर किम जोंग उन है। हिंदुस्तान के अलावा दीगर ममालिक नाइजीरिया, चीन, म्यांमार, तुर्की और पाकिस्तान को नामजद किया गया है, जहाँ इस तंजीम का दावा है कि अखिलतों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं। तंजीम ICC ने 2021 की अपनी रिपोर्ट में जो रवा माह जारी की गई, सिंह परिवार, RSS और इससे वाबस्ता तंजीमों को तालिबान और बोको हराम के साथ रखा है और हिंदुस्तान को दुनिया के 7 बड़े जालिम मुल्कों में शुमार किया है। इस वायरस में सिंह परिवार के साथ तालिबान, अल-शबाब, बोको हराम, एस्ट इंडोनेशिया मुजाहिदीन, ग्रेव इनोलोस, जमात इंशरूद दौला, अवामी तहरीक बर्पा करने वाली खवानीन और तहरीक लब्बैक जैसी तंजीमें शामिल है। किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को खरीदने की TRS और BJP हुकूमत की जिम्मेदारी होने का साबिक़ा रियासती वजीर सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। AICC के अहकामात के मुताबिक जिले निजामाबाद कांग्रेस पार्टी सदर मानाला मोहन रेड्डी के ज़ेर निगरानी में मरकजी रियासती हुकूमत पर किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को खरीदने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस भवन से कलेक्ट्रेट दफ्तर तक भारी रैली का इनेकाद अमल में लाकर कलेक्टर को मेमोरेंडम हवाले किया गया। इस मौके पर रियासती वजीर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि मरकज की मोदी हुकूमत हर साल 2 करोड़ मुलाजिमत व रियासती हुकूमत की जानिब से हर एक को घर को एक मुलाजिमत देने का वादा करके फरामोश करने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत किसानों को सहूलतों की फराहमी में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। सिर्फ सब्ज बाग दिखाते हुए किसानों को बेवकूफ बना रही हैं और दावे करते हुए काश्तकारों को बहलाया जा रहा है। और इन्होंने मजीद कहा कि कई लाख करोड़ रुपए की मसारिफ से प्रोजेक्ट की तामीर अमल में लाकर 1 एकड़ को भी पानी की फराहमी अमल में न लाते हुए बताया कि किसानों की जानिब से काश्त किए गए अनाज और बीज को यकीनी तौर पर CM KCR न खरीदने पर पुरजोर एहतिजाज करने का इंतबा दिया। మరి ఆ ప్రాజెక్టు దేని కొరకు పెట్టాడో ఆ ప్రాజెక్టు నుంచి ఇప్పటి వరకు 1 ఎకరానికి నీళ్లు ఇవ్వలేదు। ఈ వర్షాలకు అన్ని నా ప్రాజెక్ట్స్తోనే వస్తున్నాయని ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడానికి చేస్తూ ఉంటాడు। ఇప్పుడు వారు చెప్పిన పంటనే వేసుకున్నాం మనం। రైతులు వడ్లు వేసుకున్న తర్వాత మరి మీరు ఏ క్రాప్ వేయొద్దు అన్నారు, కేవలం రైతులు వరి వేసుకున్నాం। మినిమం ప్రైజెస్ పెట్టుకున్నాం। మనము గత 15 సంవత్సరాల నుంచి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు, అప్పుడు నేను మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు
ఫస్ట్ మనమే స్టార్ట్ చేసాం నిజామాబాద్ డిస్టిక్. అయితే ఆ మాట నిలబడి ఎవరి సాయం లేకుండానే కొంటానని ఆనాడు పగరబలు బరికాడు కాబట్టి ఆఖరి గింజ వరకు కొనాల్సిన బాధ్యత ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉంది. ఇప్పటికైనా కేసీఆర్ గారు నిజంగా విలువలున్న ముఖ్యమంత్రి అయితే ఆఖరి గింజ వరకు కొనాల్సిన బాధ్యత నీదే. ఆ తర్వాత బీజేపీ కొనకుంటే బీజేపీ యుద్ధం పోదాం, మేము కూడా నీతో కలిసి వస్తామనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ, మీ ఉద్యోగాల వేట, కూతుళ్ళు అల్లుళ్ళు మేనళ్ళ కోసం ఉద్యోగాలు ఇచ్చే వేట మానేసి రైతుల మీద ధ్యాస పెట్టాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తాం. के कविता कौंसिल के लिए बिला मुकाबला मुंतखब आज़ाद उम्मीदवार का पर्चा नामजदगी मुस्तरद। नामजदगियों के वापस लेने की आज आखिरी तारीख। कविता के इंतखाब का आज बाकायदा ऐलान। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दुख्तर व रुकन कौंसिल के कविता का मुसलसल दूसरी बार कौंसिल के लिए बिला मुकाबला इंतखाब यकीनी है। बताया जाता है कि मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद के हल्के मजालिस मुकामी कौंसिल के लिए TRS की तरफ से मैदान में उतरी के कविता का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया। आज रिटर्निंग ऑफिसर ने आज़ाद उम्मीदवार के श्रीनिवास के पर्चा नामजदगी को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद कविता मैदान में वाहिद उम्मीदवार रह गई। इसी तरह इनके रुकन कौंसिल बगैर मुकाबले के इंतखाब के लिए राहनुमार हो गई। वाज़ रहे कि गुज़िश्ता रोज कविता ने निज़ामाबाद मजालिस मुकामी हल्के से पर्चा नामजदगी दाखिल किया था और आज बिला मुकाबला मुंतखब हो गई। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी है कि 4 जनवरी 2022 को कौंसिल के लिए कविता की पहली मियाद मुकम्मल हो रही है। शुरू में अफवाहों का बाजार गर्म था कि कविता दूसरी मियाद के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेने के हक में नहीं और कयास लगाया जा रहा था कि इन्हें राज्यसभा के लिए नामजद किया जाएगा, मगर आखिरी लम्हे में कविता को दोबारा पार्टी उम्मीदवार बनाया गया और आज वो कौंसिल के लिए बिला मुकाबला मुंतखब हो गई। नुमाइंदा निज़ामाबाद M.A. माजिद के मुताबिक कानून साज कौंसिल के इदाराजात मुकामी के इंतखाबात में रिटर्निंग ऑफिसर व जिला कलेक्टर निज़ामाबाद सी नारायण रेड्डी ने इंतखाबी मुबस्सरीन राजेंद्र की मौजूदगी में पर्चा नामजदगियों की जांच पड़ताल की गई। कल आखिरी दिन 2 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया था, जिसमें TRS पार्टी से के कविता और दूसरा आजाद उम्मीदवार कोटा ग्रीड श्रीनिवास शामिल है। आज पर्चा नामजदगी की जांच पड़ताल में TRS उम्मीदवार के कविता के पर्चा नामजदगी दुरुस्त पाई गई, जबकि आजाद उम्मीदवार कोटा ग्रीड श्रीनिवास की नामजदगी में फॉर्म 26 में हल्फनामे में खामी की वजह से इनके पर्चे को मुस्तरद कर दिया गया। जिला कलेक्टर व रिटर्निंग ऑफिसर ने TRS उम्मीदवार के कविता के पर्चा नामजदगी को दुरुस्त करार दिया है। पर्चा नामजदगियों को वापस लेने की कल आखिरी तारीख है, जिसके बाद के कविता के बिला मुकाबला इंतखाब का ऐलान किया जाएगा। शहर में आज सुबह के अव्वलीन सातों में कोहर के 22 मुकामी अफवाह व मोटरसाइकिल सवार अफराद को दिक्कत पेश आई। जिले निज़ामाबाद के मुकाम पर आज सुबह के अव्वलीन सातों यानी 5 से 8 बजे तक हर तरफ कोहर देखा जा रहा है। कोहर की वजह से मुकामी अवाम वो मोटरसाइकिल सवार अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सामने से आने वाली गाड़ियां नजर नहीं आ रही हैं। इसी तरह से सुबह 7 बजे तक भी सूरत हाल देखी गई। शहर के मुकामात आरमूर रोड पर कोहर की झलक देखी गई। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी हुए कोविड से मुतासर, हैदराबाद में जेर इलाज। इनसे मुलाकात करने वालों को भी आइसोलेशन में रहने की अपील। मुत्तहदा जिले MLC की हैसियत से बिला मुकाबला मोहतरमा के कविता की कामयाबी दर्ज करने पर TRS कायद की जानिब से 40 फीट ऊंचा फ्लैक्स को गोंडा पोचा रिजर्वायर पर पारा ग्लिडाइन के जरिए लगवाते हुए किया अपनी खुशी का इजहार। जानकमपेट वाक़े के बाद शेख नोमान पर भैंसा फसादात में शामिल होने का फर्जी मुकदमा दर्ज। वो इनके वालिद जो 30 साल से महकमे पुलिस में खिदमत अंजाम दे रहे, इनको नौकरी से किया गया मुअत्तल। महकमे पुलिस की ज़ियादतियों के खिलाफ जमीयत-उल-उलमा जिले सदर हाफिज लई खान तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स काउंसिल से नुमाइंदगी। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों बालकोंडा में 8.5 करोड़ की लागत से तरक्याती कामों का आगाज।
MSO निजामाबाद जुम्मेदार एडवोकेट ज़ीशान रज़वी MSO नेशनल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। शहर व रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से मुबारकबादी का सिलसिला जारी। बिलाखिर सेक्रेटरीट की मसाजिद का रखा गया संगे बुनियाद। वो मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया जामिया निजामिया ने अदा की नमाज, लेकिन तकरीब में रियासती वज़ीर-ए-आला व दीगर वज़रा गैर हाजिर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।